Good morning to all the students, my dear students, and welcome to the Zoology online class. In the previous class, I had completed up to the I have started the mechanisms of the fertilization. I have started I have told you what is the fertilization and the types of fertilization. Then I have started the mechanisms of fertilization and proceed up to that is the meeting of gametes. I have told you the mechanisms of the fertilization is studied under four headings. That is meeting of the gametes. The second one is called as the activation of the sperm, and the third one is called as the activation of ovum, and the fourth one is called as the amphimixis. So under the mechanisms, I had completed the meeting of the gametes. That means how the gametes are mating to, or they are mating to each other. The first of all, that is after insemination, the sperm enters into the side and reach at the side of the fertilization in less number, and it takes about 5 to 6 hours to reach there. And similarly, the ova takes 6 hours. Within 6 hours, the ova reach here by the beating of the cilia and the fimbriae, as well as the peristalsis movement of the oviduct. The female, that is the egg, reach here. So in this way, then after they collide to each other, then the reaction is started. And first of all, that is the reaction which occurs, that is in the reaction starts in the acrosomal region of the sperm after the collision. So that is called as the activation. The second, that is the point of the mechanism, is called as the activation of sperm. The sperm, how the sperm is activated? No doubt the sperm is active one, but how? That is, it is ready. And I have told you in the previous class that at the time of journey, the sperm become active and gains the capacity to fertilize. That is called as the capacitation. When a capacited, that is activated, that is when that is then the eggs which, first of all, the egg which reaches at the oviduct after ovulation, it is called as the secondary oocytic stage. And that egg is surrounded by two layers. One is the zona pellucida. This is the ovum. This is the ovum, and it is a secondary oocyte stage, zona pellucida, and that is a cellular layer that is called as the corona radiata. That is a cellular layer that is called as the corona radiata. That is called as the corona radiata. So the ovum which that is enters into the oviduct, it has that is additional two layer, that is called as it is covered by two layers. One is zona pellucida, another is the corona radiata. So corona radiata is a cellular layer which are attached to each other. Clear? Then when the sperm touches to the ovum, at that time something is occurred, or some, that is the peculiar thing is that taken here. At first, that is the acrosome of the sperm, that is the peripheral portion of the acrosome of the sperm collapses or discharges. What? Some certain chemical substance, and these chemical substance are collectively called as the sperm lysine. That chemical substance collectively called as, are you understanding me or not? ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ମଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଆସିକି ଓଭା ସହିତ ଲାଗିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ ସେତେବେଳେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଯିବ ତାର ଏକ୍ରୋଜୋମାଲ ରିଜିଅନରେ, ତାର ପେରିଫେରାଲ ମାନେ ସାଇଡରୁ
किसी केमिकल सब्सटेंस से सिक्रेट करिवो से केमिकल सब्सटेंस गुडा को कलेक्टिवली कहला स्पर्म लाइसिन ता भितर तीनटा इंपोर्टेंट केमिकल सब्सटेंस अछि कोन कोन ना हाइलोरोनिडेस से कौन करिवो ना ए जो कोरोना रेडिएटर जो सेल गुडा को अछंती से मानकर जो इंटरसेलुलर मिक्सिंग हेची दैट इज कॉल्ड एज द बाय द हाइलोरोनिक एसिड सेटा को से डिसॉल्व करके ए सेल गुडा को सेपरेट करिवो एंड द सेकंड केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज corona penetrating enzymes the corona penetrating enzymes that is the second one is corona penetrating enzymes in this corona penetrating enzymes ये कौन करिवो ना कोरोना रेडिएटर टाको डिसॉल्व करके ता भीतर को पसिबो थर्ड जो केमिकल सब्सटेंस अछि ताको कहंती that is the जोनालाइसिन ता माने से जोना that is पेलुसिडाटा को डिसॉल्व कर दो और देता भीतर को पसिबो तो एटा हला तीनटा केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करिवो कोटे ना फ्रॉम द पेरिफेरल फ्रॉम द साइड ऑफ द एक्रोसोमल रीजन तेणु एटा सिक्रेट करिवो ताको डिसॉल्व करके एटा पसिबारे सहाय्य करिवो तापर कोन करिवो ना आउ कोन करिवो आउ तापरे ए जो सेंटर कोन करिवो ना ए जो गुटे फिलामेंट स्ट्रक्चर डेवलप करिवो ए सेंटर गुटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करिवो से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कोंती एक्रोसोमल फिलामेंट जेतले स्पर्मटा एक्रोसोमल फिलामेंट गेन करिवो बा बहन करिवो सेतले हमें ताको कहबा स्पर्म इज एक्टिव वन एंड द स्पर्म इज रेडी टू एंटर इनटू द ओवम किंतु एक्रोसोमल फिलामेंटा हमरो ह्यूमन केस रे हुए नाही एठी कोन हुए ना डायरेक्ट दैट इज द एक्रोसोमटा डायरेक्ट लागि जाय बा हेड ऑफ द डायरेक्ट लागि जाय का सहित ना दैट इज द ओवम रो दैट इज द मेम्ब्रेन सहित डायरेक्ट लागि एठी आउ तार कोन हुए ना एठी आउ तार एक्रोसोमल फिलामेंट तयारी हुए नाही कार ना मेन केस तापर से कोन कहूची ना ए जो रिएक्शन हला एक्रोसोम रे आकु कहंती एक्रोसोमल रिएक्शन याकु कोन कहंती ना एक्रोसोमल रिएक्शन ए एक्रोसोमल रिएक्शन पाई मनुष्य केस रे कोन हुए ना जतले एक्रोसोमल रिएक्शन होउची एठी कोन कोन दरकार ना ऑप्टिमम पीएच एंड द टेम्परेचर एंड दैट इज द कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन्स आर नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ that is the acrosomal reaction या भितरे कैल्शियम आयन इज मच मोर important except that is in absence of the calcium ion the fertilization or the activation cannot be occurred. So this is called as the acrosomal reaction or this reaction cannot be occurred then without the calcium ion. Then the absence of which that is the fertilization cannot occur. So anyway, this is all about the activation of the sperm. Are you understanding me or not? प्रथमे कोन करिवो स्पर्म टा एग सहित लागिले तापरे कोन हबो जेतबेले टच कला सेतबेले दैट इज दी जो सिक्रेशन हबो किछि दैट इज द कोटू ना एटी एग आसी गला एठी की आउ स्पर्म भी जाई की पहुंची गला ए समय टच कला स्पर्म एक्शन देखेबो जतले टच कला सेतले तार साइड जतले एकटा आसी तार दीटा लेयर रहिछि बाहर जोना ब्लेडुसरा ता बाहर रहिला कोरोना रेडिएटा तेनो एठी जो सिक्रेशन हबो पेरिफेर रु जो दैट इज द केमिकल सब्सटेंस को कलेक्टिवली कहा गला स्पर्म लाइसिन से कोन कला ना तीनटा मेन केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट कला गुटा हला दैट इज द हाइलोरोनिडेस जे हाइलोरोनिक एसिड टाको डिसॉल्व कर दबा ई जो सेल माने कनेक्शन आइछन दैट इज कोरोना रेडिएटा करछन तापरे दैट इज कोरोना पेनिट्रेटिंग कोरोना दैट इज रेडिएटा को से पेनिट्रेट करके भीतर को पसिबो तापरे सिक्रेट करिवो जोनालाइसिन जो जोनालाइसिन करिवो जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करके एग मेम्ब्रेन सहित ये आ हेड रो मेम्ब्रेन टा पूरा फ्यूजन हे जो जा द्वारा कि स्पर्म टा ता भीतर को तार साइटोप्लाज्म बा तार प्रोटोप्लाज्म टा ए भीतर को पसेबार सहाय्य करिवो किंतु ए जो हला एटा को कहंती एक्रोसोमल रिएक्शन ए एक्रोसोमल रिएक्शन पाई जो ऑप्टिमम टेम्परेचर and that is the pH as well as the calcium ion
and the magnesium ion are highly necessary, and among them the calcium ion is highly necessary. Without the calcium ion, the fertilization is not occurred. So anyway, then you come to the activation of the ovum. Activation of the ovum. We know that is the activation of the ovum. Let me draw the figure. The third point is called as the activation of the ovum. The third point is called as the activation of the ovum. Yes, when the sperm touches to the ovum, 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 then certain physiological and mechanical changes are occurred. That is, when the sperm touches to either by its acrosome or directly by its head, that is, ovum shows certain morphological and physiological changes. So what are that? That can be studied under three heads. That is, first is the ek number is, that is the formation of, that is the reception cone or the fertilization cone. Formation of fertilization cone or reception cone. जेतले स्पर्म टा टच करिवो एग को एई समय एग कोन करिवो बा ओवम कोन करिवो तार साइटोप्लाज्म टा टिके बल्जिंग करिवो। ए साइटोप्लाज्म टा टिके बल्जिंग करिवो। ए साइटोप्लाज्म कोन करिवो टिके बल्जिंग करिवो। काहे की बल्जिंग करिवो? सो दिस बल्जिंग इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन कोन और इट इज कॉल्ड एज द रिसेप्शन कोन। एई बाटो देई से स्पर्म को आह्वान करिवो जे तू एई बाटा आ। तेनु एई जो तापरे स्पर्म ता भीतर को आसाइला परे पुणी एटा विथड्रॉ हे जिवो। पुणी एटा विथड्रॉ हे जिवो। दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। Then the second one is called as that is the formation of, that is prevention of the polyspermy or formation of fertilization membrane. Formation of fertilization membrane to prevent the polyspermy. To prevent the polyspermy. Polyspermy means basic sperm जेमति ता भीतर को आसीबो नाही सेति पई से तार किछि स्ट्रक्चर एठी स्ट्रक्चरल चेंज हबो। कोन हबो ना फर्स्ट ऑफ ऑल जतले स्पर्म ता याकू टच करिवो, स्पर्म ता जतले एग मेम्ब्रेन को टच करिवो सेतले कोन करिवो एग मेम्ब्रेन बिकम्स डीपोलाराइज्ड माने या भीतर को किए जीवो ना सोडियम आयन जीवो। या भीतर को सोडियम आयन जीवो आ एटा को डीपोलाराइजेशन करिवो जा द्वारा कि सोडियम आयन गले एटा को डीपोलाराइजेशन कर दबो। डीपोलाराइजेशन करी देले दैट इज कोन हबो ना आउ ता भीतर को स्पर्म ता भीतर को आउ फर्दर स्पर्म जाई परिबो नाही। सो एटा कोन कला फर्स्ट केस। सेकंड केस कोन हबो when the sperm enters into the ovum, when the sperm enters into the ovum, it stimulates the cortical granules or it activates the cortical granules. I mean, janiche cortical granules are the granules which are present just below the ओलेमा, just below the plasma membrane of the ovum. से माने आस्ते आस्ते कोन हबे एक्टिव हे जिवे। जतले से माने एक्टिव हे जिवे से माने फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन तैयारी करिबारे सहायता करिवे बा एडिशनल मेम्ब्रेन तैयारी करिवे जोटा कि आउ फर्दर स्पर्म को एंट्री करिया पई दबो नाही। केमिति हबो एई समय कोन हबो ना कैल्शियम आयन पसिबो। जतले एटा भीतर को पसिबो स्पर्म ता कैल्शियम आयन ओवम भीतर को पसिबो। पसि कि कोन करिवो ना ई कॉर्टिकल ग्रान्युलोडा को एक्टिवेट कराइबो बा एक्टिव कराइबो। ए कॉर्टिकल ग्रान्युल एक्टिव कराइले डिफरेंट एनिमल डिफरेंट सीक्वेंस हुए इन सी आर्चिन। इन सी आर्चिन समुद्र रे गोटे एकिनोडर्माटा सी आर्चिन एटी कोन हबो ना जो वाइटालाइन मेम्ब्रेन अछि जस्ट ओवर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन
एटा टिके छाड़ी जीवो एटा टिके छाड़ी जीवो छाड़ी जाई कि गोटे स्पेस तयारी करिवो दैट इज कॉल्ड एज द पेरीवाइटालाइन स्पेस पेरीवाइटालाइन स्पेस ए जो कॉर्टिकल ग्रान्यूल कोन करिवो से पेरीवाइटालाइन स्पेस को पळे आसीबो आसिके ए जो दैट इज द ए लेयर टा को ठीक कर दबो जा द्वारा कि आउ कोन हबो स्पर्म ता भितर एंट्री करिवो इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स कोन हबो ना ए कॉर्टिकल ग्रान्यूल गोटे सिक्रेट करिवो केमिकल सब्सटेंस ताकू कहती म्यूकोपोलिसैकेराइड्स ताकू कोन कहती ना म्यूकोपोलिसैकेराइड ए म्यूकोपोलिसैकेराइड कोन करिवो ना इट विल एंटर इनटू द डिफ्यूजेस into the zona pellucida कारण ट्रू वाइटालाइन मेम्ब्रेन ह्यूमन केस रे नाही एटा जोना पेलुसिडा को पळे आसीबो एंड इट मेक्स द जोना पेलुसिडा हार्ड जो जोना पेलुसिडा टा को हार्ड कर दबो से लेयर टा को जा द्वारा कि फर्दर स्पर्म ता भीतर को पस परबो नाही सो इन दिस वे इट इज कॉल्ड एज द प्रिवेंशन ऑफ that is the polyspermy and or it is called as the formation of fertilization membrane. It is called as the formation of fertilization membrane. Then after the third thing which happens, that is the resumption of the meiosis two. That is the meiosis 2. आमे जानी छे जे जतोले ओजेनेसिस हेतला सतोले मु कहितली जे ओजेनेसिस रे दी जागा रेस्टिंग स्टेज प्रथम रेस्टिंग स्टेज ता दैट इज द डिप्लोटिन स्टेज रो meiosis 1 केस रे आउ सेकंड दैट इज द रेस्टिंग स्टेज ता कोठी ना सेकंड रेस्टिंग स्टेज ता होची मेटाफेज 2 रे आउ से दैट इज मेटाफेज 2 रेस्टिंग स्टेज ता एटी कोन हबो सतपन ता कोन होची ना सेकंड दैट इज सेकंड वो एबे भी कहिछि जे सेकेंडरी ओसाइट स्टेज रे ओव्यूलेशन आइछि तेनु एटी फाइनल ओवम हवा पई आ गुटे पोलार बॉडी से काढिबो आउ थरे से डिवीजन हबो आ गुटे सेकंड पोलार बॉडी से दबो जतले स्पर्म ता एंट्री कला आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म इट रिज्यूम्स बुझि परछो रिज्यूम माने जोटा बंद हेकि तला सेटा आउ थरे आरंभ हबाटा कोन रिज्यूम दैट इज कॉल्ड एज द रिजम्पशन ऑफ द meiosis ता माने आउ थरे meiosis सेकंड डिवीजन ता हबो हे साला परे एटा कोन हबो दैट सेकंड पोलार बॉडी हबो आ एटा टोटल दैट इज द ओवम रे परिणत हबो मैच्योर्ड ओवम रे परिणत हबो दैट इज ए तीनटा जिंस हला कोन हला एक नंबर हला द फर्टिलाइजेशन कोन बा रिसेप्शन कोन बी नंबर हला फॉर्मेशन ऑफ दैट इज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन टू प्रिवेंट द दैट इज द पोलिस्पर्मी and third number hela that is the resumption of the metaphase 2 ता जो अटकी की थिला एटा सेकेंडरी ओसाइट रे थिला एटा हे गेला हे की टोटल that is ओवम रे परिणत हला मैच्योर्ड ओवम रे एटा परिणत हला ता परे आ गुटे की चेंज होची जोटा की किछि फिजियोलॉजिकल भी चेंज होची ओवम भितरे जा द्वारा की आ रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो इंक्रीजेस ताने ए स्पर्म ता एंट्री कला बेले या भितरे फिजियोलॉजिकल चेंज किछि हला का भितरे ना ओवम भितरे जो फिजियोलॉजिकल चेंज ता हमें केमिति जानिबा ना द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज द रेट ऑफ दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस increases. So this is all about the activation of the ovum. Ovum ता मूलरू inactive सेटा चुपी गोटे जगह थाए जतले स्पर्म ता ताकू आसी की ता पाखरे पहुंचीबो सेउटू से एक्टिव हबो हला आउ गुटे खाली एक्टिव है ना केमि चलिबो दी जण जाका एक्टिव होबे ना स्पर्म भी हबो ओवम भी हबो तेनु ओवम ता एक्टिव हबो किमिति एक्टिव हला ना ई तीनटा प्रोसेस रे हला देखेला कोन फिजियोलॉजिकल आउ तार मॉर्फोलॉजिकल चेंज हला एटा देखेला दैट इज कोन ना फर्टिलाइजेशन कोन हला फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हला आउ दैट इज द सेकेंडरी दैट इज द जो है कि बंद है कि थेला जो meiosis ता रेस्ट सेकंड रेस्टिंग स्टेज रे थेला सेटा फाइनल है कि ओवम रे परिणत हला तापरे मेटाबॉलिक चेंज हला जा द्वारा कि मेटाबॉलिक चेंज रे कोन हला ना ए मेटाबॉलिक चेंज रे से कोन हला तार प्रोटीन सिंथेसिस आउ रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ी गला तापर हमें देखिबा दैट इज एम्फीमिक्सिस द लास्ट फेज इज फोर्थ फेज दैट इज कॉल्ड एज द एम्फीमिक्सिस एम्फी माने से बहुत मिक्सिस माने मिक्सिंग एंड दीटा न्यूक्लियस मिसी जिवे कारण ऑलरेडी स्पर्म भीतर को पसी गला पसी जीवो का भीतर को ना ओवम भीतर को
पशिगला पर केमिति फर्टिलाइजेशन होची एम्फी मीन्स बोथ मिक्सिंग सन मिसिबो दीटा न्यूक्लियस दी जण को मिसिबे एटा केमिति हबो हमें देखिबा केमिति ना यू सी दैट इज हाउ इट ऑकर्स एंड very interesting thing here suppose this is the egg and here the nucleus of the egg and this is the animal pole through the animal pole the sperm enters in a path that is called as the penetration path मु कहिछि that is the penetration path का animal पोल पाखरे हबो आउ इन द एनिमल हेमिस्फियर आउ एटा परपेंडिकुलर है कि हबो एटा से कोन हबो पसिबो जतले पसिबो सेतले टेल ताकू से छाडी दबो एटा गुटे सेल्फिस्टा स्पर्म तार टेल ताकू सहाय्य कला आनी के एठी पहुंचे बारे ओभम पाखरे पहुंचे बारे टेल ताकू सहाय्य कला जेमिति महाभारत रे युधिष्ठिर कहले मु जीवी नै स्वर्ग को जदी कुकुर न जीवो किंतु ये कौन कला टेल को छाड़ी दला जे ताको सहाय्य करता ताको काटी दला कहला मु तो भीतर को पसी जेबी तुम आउ तू दरकार नहीं तेणु से टेल को काटी दो हला केवल हेड आ मिडिल पीस ता भीतर को पसीबे किंतु इन केस ऑफ सर्टेन बुक्स रे लिखा हिची जे ह्यूमन केस रे टोटल स्पर्म ता भीतर को पसीबो एट दैट इज एंगल ऑफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन पाथ पसी जीवो पसी गला परे आगे रहिला हेड तो पछकु रहिला मिडिल पीस एंड टेल तो पसी आसला परे देखिला जे एटा कुआगला पेनिट्रेशन पाथ देखिला जे ओभम जो स्पर्म ना न्यूक्लियस ता एठी नाही तेणु तार डायरेक्शन को चेंज करिवो यार एम होची टू मिक्स विथ द न्यूक्लियस ऑफ द ओभम सो एट दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड से कोन करिवो ना एटा 180 डिग्री रोटेट करिवो 180 डिग्री रोटेट करिवो रोटेट कले हेड ता पछु को आसीबो मिडिल पीस आउ टेल बा खाली मिडिल पीस ता एट रहइबो ना फ्रंट को रहइबो तापरे एमाने सेपरेट हे जिवे एमाने सेपरेट हे जिवो हेड ता ताकतरो सेपरेट हे जिवो मिडिल पीस कोतरो आउ ए मिडिल पीस टेल एठी जो सेकंड पोलर बॉडी थिबो एई समय काल रे सेमान सब डिजेनरेट करि जिवे बा नष्ट हे जिवे तापरे द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म इट एनलार्जेस एंड फॉर्म्स ए लार्ज न्यूक्लियस and that is called as the male pronucleus केमिति हलाटा बॉडी की ना वाटर किछि से एब्जॉर्ब कला का कतरु ना ओभम कतरु सो इट इज कॉल्ड एज द मेल प्रोन्यूक्लियस एई समय भितरे फीमेल रे न्यूक्लियस ता टिके एनलार्ज करिवो इट इज कॉल्ड एज द फीमेल प्रोन्यूक्लियस ए एनलार्ज हे साला परे फीमेल प्रोन्यूक्लियस ता चालिबो कुआडी की ना टू द लाइन ऑफ पेनिट्रेशन पाथ अरे ये आसीबो ये न गले केमिति मिटे हबो हला तेणु ये कोन करिवो ना एई समय मेल भी सेकंड पाथ फॉलो करिवो मेल प्रोन्यूक्लियस ता सेकंड पाथ फॉलो करिवो एंड द सेकंड पाथ व्हिच इज फॉलोड बाय द मेल प्रोन्यूक्लियस टू मीट विथ द फीमेल प्रोन्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द कॉपुलेटरी पाथ एटा बहुत बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन पड़े दैट इज द copulatory that is the path which is followed by the male pronucleus to meet with the female pronucleus is called dash पिला लिखि दियंती penetration path but it is the copulation path तापरे दी जण जाको आसिकी मीट माट हला परे तळे मझी रे पहुंची जिबे कोठी फर्टिलाइजेशन हो पाखा पाखी मिडिल रे हो पाखा पाखी एग रो मिडिल रे हो पहुंची गला परे दी जणकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करि जिवो दी जनकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करि जिवो न्यूक्लियस मटेरियल उडा खाली रहिबो तो न्यूक्लियस मटेरियल उडा खाली रहिबो तापरे कोन हेबे दे विल मिक्स टू ईच अदर एंड इट विल फॉर्म्स द जाइगोट न्यूक्लियस ता ऊपर आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तयारी होबो नाही कारण एटा फर्स्ट एंट्री करिवो कोठी की ना फर्स्ट सेल डिवीजन को एंट्री करिवो आ ये फ्यूजन ता केतळे हुए ना अबाउट 1 पॉइंट बा 1.5 घंटा परे स्पर्म पसिबार 1.5 घंटा परे एम्फीमिक्सिस हुए स्पर्म पसिबार 1.5 घंटा परे एम्फीमिक्सिस हुए स्पर्म पसिबार 1.5 घंटा परे कोन हुए ना एम्फीमिक्सिस हुए आउ
এই এম্ফিমিক্সিস হেলা পরে দ্যাট ইজ 1.5 ঘন্টা পরে কোন হুয়ে না এম্ফিমিক্সিস হুয়ে এইটু কোন হেলা ফর্টিলাইজেশন কমপ্লিট হেলা এম্ফিমিক্সিস পরে এটা ফর্টিলাইজেশন কমপ্লিট হেলা এই সময় আমি কহিবা না দি ফিমেল ইজ প্রেগনেন্ট এতিকে আমি কহিবা দি ফিমেল ইজ প্রেগনেন্ট যেতବେଳେ এটা মিক্সিং হেলা সেতବେଳେ আমি কহিবা দি ফিমেল ইজ দ্যাট ইজ দা প্রেগনেন্ট সো এটা হলা অ্যাক্টিভেশন অফ স্পার্ম आज कौन पढ़ागला एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन ऑफ ओवम स्पर्म एक्टिवेट केमिति हला जतळ तार फिलामेंट तयारी हला एक्रोसोमाल फिलामेंट किंतु मनुष्य केस रे एक्रोसोमाल फिलामेंट हुए नाही तापरे एक्टिवेशन ऑफ द ओवम ओवम केमिति हला ना विथ द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन केमिति जानिबा फर्टिलाइजेशन कोन हला फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हला तापरे कोन हला ना रिजम्पशन ऑफ द दैट इज द मियोसिस सेकंड जो डिवीजन ता बाकी थला सेटा हला तापरे एम्फिमिक्सिस हला पेनिट्रेशन पाथ ता एटी रोटेट कला 180 डिग्री पेनिट्रेशन पाथ तापर रोटेट कला 180 डिग्री तापर कोन हला ना एटा बढ़िला एटा हला मेल प्रोन्यूक्लियस आउ एटा हला फीमेल प्रोन्यूक्लियस ये भी बढ़िला दी जण जाके अप्रोच कले ये जो सेकंड पाथ ता कला ताको कहला कॉपुलेशन पाथ दी जण कर मेम्ब्रेन ता डिसइंटीग्रेट करिवो दी जण कर न्यूक्लियर मटेरियल मिसी जीवो सेटा हला एम्फिमिक्सिस जोटा हला 1.5 घंटा परे स्पर्म पसिबा 1.5 घंटा परे एटा हला रो फर्टिलाइजेशन इज फिनिश्ड एतळको फर्टिलाइजेशन ता सरी गला हला एतळको हमें कहबा कोन ना फीमेल इज प्रेग्नेंट द फीमेल इज प्रेग्नेंट तापरे हमें देखिबा जे केते गुडा का सब फैक्ट व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन हेले हमर कोन लाभ हला व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द it is all about the fertilization then you come to the significance of the fertilization significance of fertilization significance of fertilization so first of all the first significance is the restoration of diploid states restoration means जो n थिला अरे ओवम रे कोन थिला गोटे n थिला आ गोटे करे n थिला ता माने जतले जाइगोट हे जिवो सेटा कोन हे जिवो 2n हे जिवो सो दिस इज कॉल्ड एज द restoration of the that is the diploid space in the zygote that is the first point that is the restoration of diploid space in the zygote then the second one is introduction or introducing of the centriole from the sperm into the ovum that means centriole ta ovum re no thae ba matured egg re centriole no thae tenu centriole ta darkar for the further development tenu sperm re centriole thae dita centriole thae gudo hochi proximal centriole out hochi distal centriole at the time of fertilization the proximal centriole enters into the egg the distal centriole discarded or it is degenerate that is along with the axial filament of the tail so introducing of the centriole into the ovum and the third one that is it is the second point and the third one is the increase of the metabolic rate of the zygote as well as the cells of the developing embryo by offspring that means जे मु बंचिछि मो बापा आ मो बो मरि गेले किंतु तांकरी सेल बापा कतरु स्पर्म आ मां कतरु ओवम आस्तला मु जतले तयारी हिथि ए दीटा मिसी की मु बंचिछि किंतु सेमाने चली गेले तेनु ए जो जाइगोट हला तेनु जो क्लोनिंग होउछि आजिकली क्लोनिंग रे डॉली मरि गला काहे कि मरि गला ना तार बॉडी सेल कतरु तयारी हेथला तार ए प्रकार ही नथिला किंतु फर्टिलाइजेशन ला कोन होबो ना तार मेटाबॉलिक रेट ता बढ़ी जिवो life is nothing but that is the result of the metabolism that is the result of the chemical reaction inside the body all the chemical reaction which occurs inside the body is called as the metabolism if their capacity enhance for more than 60 years or 80 years tane mu bonchi tenu mu mori jimi ba moro wife mori jibo kintu mo chua bonchibe that is kai ki hala na due to the fertilization the metabolic rate of the metabolism or the longevity of the chemical reaction which occurs inside the cell lifespan extends so that is
that is the child will live and will die. Then the metabolic rate enhance. Then it determines the sex. The fertilization determines the sex. যদি X fertilize করিব তাহলে সেটা ফিমেল হবো, স্পর্মটা যদি X আইলা ফিমেল হবো, যদি Y আইলা মেল হবো। ফর্টিলাইজেশন হেলে দ্যাট কোন হবো না সেক্সটা ডিটারমাইন্ড হবো, সেটা মেল হবো কি ফিমেল হবো, নহিলে সবু এগ গুড়া contains the X. It is all one type. Then another thing is it induces the formation of the fertilization cone, the fertilization membrane which prevents the polyspermy. Another thing that is fertilization causes the final maturation division of the secondary oocyte to forms that is the ovum, to forms the ovum. তার মানে এটা ফুল ম্যাচিউরড হবার সাহায্য কলা। So these are that is the significance of that is the fertilization. Main significance হচ্ছে diploid state করিব, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା metabolic rate বଢାইବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା centriole ভিতরে পଶିଲା। So এইগুଡ଼ା ହେଲା ଆଉ sex determine করিব, ଆହୁରି ଯେହେତୁ এটা দুইটা maternal that is the paternal property ମିଶିଲା ଦୁଇଟା ବଂଶରୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କଲାଟାଇ that is the variation ଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କୁହାଯିବ କାହାକୁ ନା that is sexually reproductive organisms are that is offspring, and that is the asexual reproducing organs are called as the clones. They are called as the clone. They are alike because their genetical structure are similar. It is genetical structure अलगा हला, गुटे अन्य पीढ़ी रु आसला, आ गुटे chemical that is the chromosome गुड़ा अलग पीढ़ी रु आसला, तेणु एटा कोन हला ना वेरिएशन आसला, पार्थक्य आसला, तेणु सबु छुआ गुड़ा का समान नुहे बाप मांकर, आउ पार्थक्य आसिले एटा it will help in the evolution. So let me start the types of twins. Some that is important fact. With this, the fertilization is finished. So let me describe some of the peculiar things which occurs. That is the formation of twins. Formation of twins. Twins means jala. That is formation of twins. That is twins means jala. That is twins formed. They are of different types. They are of different types. One is that is non-identical. That is non-identical twins. One is formed that is called as the non-identical twins. Non-identical twins. What is non-identical twins? Non-identical twins माने दीटा जो जांला हेबे से माने एका प्रकार देखा जिबे नाही। काहे के देखा जिबे? आमे कोन पढी के आइले? आमे पढी के आइले जे मेंस्ट्रुअल साइकिल रे प्रति ओभारी रु गुटिए कोन हबो ओभा आसे। प्रति मेंस्ट्रुअल साइकिल ए गुटिए ओभा आसीबो ओविडक्ट देकी सेटा फर्टिलाइजेशन हबो, गुटिए पिला हबो। जदि ए मास रे ए ओभार आइला आर मास को आर ओभार आसीबो, किंतु बेले बेले गुटे ओभार रु भी दीटा ओव्युलेशन एग ओव्युलेशन हे जाय। एटा एक्सेप्शनल केस। सही समय जदि ता दीटा ओभा आसिला आउ स्पर्म तो ह्यूज नंबर्स ऑफ जाउचंदी, तेणु दीटा ओभा जदि बाय चांस फर्टिलाइज हे गले सेठी दीटा चाइल्ड प्रोड्यूस हेबे। आउ से चाइल्ड दीटा जाको they are not identical to each other. ସେମାନେ ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇ ପାରେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇ ପାରେ, ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇ ପାରେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ they are that is କିମ୍ବା ଦିଟା ଯାକ ଝିଅ ହେଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦିଟା ଯାକ ପୁଅ ହେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ସିମିଲାର ହେବେ ନାହିଁ। they are called as the non identical। କାହିଁକି ହେଲା ନା ଏଟା ଦିଟା ଓଭା ଆଉ ଦିଟା ସ୍ପର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫର୍ଟିଲାଇଜ କଲେ। ତାପରେ ଆସିବା that is identical twins। that is second one is called as the identical twins। एडा का काहे के एटे पढ़ा होची ना एडा पढ़ा होची जो twins हेबे that is एडा को फर्टिलाइजेशन द्वारा ही हेबे, एडा को फर्टिलाइजेशन द्वारा ही हेबे twins गुडा को। गोटा हला नॉन आइडेंटिकल twins आ गोटा हला एडा दीटा ओभर डेवलप कर। आइडेंटिकल twins से कोन हुए एडा होची मोनोजाइगोटिक। एडा हुए ड्यू टू द मोनोजाइगोटिक। कौन हुए मोनोजाइगोटिक रे एटी गुटिए ओभा गुटिए स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज हला। तापर जतले क्लीवेज हबो दीटा ब्लास्टोम इयर्स हबो, दीटा ब्लास्टोम इयर्स हबो, फर्स्ट क्लीवेज हला दीटा ब्लास्टोम इयर हबो।
सेकेंड क्लीवेज हेले 4टा ब्लास्टोम ईयर हम अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर स्टेज पर्यंत अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर स्टेज पर्यंत से माने लूजली सब रहंती सेल गुड़ाक लूजली रहंती तेणु से समय भितर से सेपरेट हो जिबार बा सेपरेट है कि दैट इज इंडिपेंडेंट बढ़िबार कैपेसिटी अच्छी तेणु जदि फास्ट क्लीवेज बेले से माने दीटा ही गले अलग अलग सेपरेट हो गले दे विल डेवलप इनटू टू सेपरेट इंडिविजुअल बा सेपरेट ऑफस्प्रिंग्स सेपरेट ऑफस्प्रिंग सही समय यार जेनेटिकल स्ट्रक्चर जहां तार जेनेटिकल स्ट्रक्चर से कारण इट इज ए मोनोजाइगोटिक इट इज ए मोनोजाइगोटिक गोटे ओभार डेवलप करछंती तेणु यार जेनेटिकल स्ट्रक्चर जाता तेणु एठी दीटा जाक पुओ हेबे किंबा दीटा जाक झियो हेबे आ दीटा जाक देखिबा पई समान हेबे सो दे आर कॉल्ड एज द monozygotic that is so it causes the identical twins then other twins that is called as the polar body twins another is called as the polar body twins what is polar body twins that is polar body टा कोन हुए ना एनिमल पोल पाखरे रहे पेन पोलार बॉडी एटी रुहे आ एटा डिसइंटीग्रेट कर जाए रेयर केस रे एक्सेप्शनल केस रे पोलार बॉडी भी बेले बेले फर्टिलाइज हो जाए पोलार बॉडी भी बेले बेले फर्टिलाइज हो जाए along with the fertilization of the ovum सही समय दीटा छुआ जन्म हो that is called as the polar body twins that is मदर साइड रो जेनेटिकल स्ट्रक्चर समान हबो किंतु फादर साइड रो जेहेतु तेरा दीटा स्पर्म फर्टिलाइज करची फादर साइड रो समान हबो नाही तेनु एठी दीटा जाको अलग अलग हेबे कारण दीटा जाको पुओ ही पारंती दीटा जाको झियो ही पारंती बा गुटे पुओ गुटे झियो ही पार किंतु आइडेंटिकल ट्विन्स से दीटा जाको समान हेबे दीटा जाको पुओ हेबे किबा दीटा जाको झियो हेबे आ समान समान हेबे देखिबा पई किंतु ए माने अलग हेबे हला एटा हला पोलार बॉडी ट्विन्स another is called as the super fecundative twins another is called as the super fecundative twins super fecundative twins super fecundative twins is very rare but it is not impossible ये केस रे कौन हुए ना ये केस रे गुटिए मेंस्ट्रुअल साइकिल रे दीटा ओभा प्रोड्यूस हुए ओव्यूलेशन रे आउ से फीमेल जदि गुटे सप्ताह भितरे समान साइकिल रे समान मेंस्ट्रुअल साइकिल रे समान पीरियड भितरे दी जण सेक्सुअल पार्टनर सहित मिसे ताने देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट दैट इज द फादर ऑफ टू डिफरेंट फादर एटा तो एटा होची सेक्सुअल पार्टनर सहित मिसिले एटा को कुआ गला सुपर फेकंडेटिव ट्विन्स आ उटा हला दैट इज कॉल्ड एज द साइमेस ट्विन्स that is called as the Siamese twins that is called as the Siamese twins what is Siamese twins that is the jogavelia of the kandhamala by eta ko kahagala conjoint twins जेटा कोन हुए ना एटे दीटा जाको आइडेंटिकल चाइल्ड जो दीटा प्रोड्यूस हबो दे आर ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स सपोज फर्स्ट क्लीवेज रे एकटा भांगी के दीटा है जुआ कथा भांगी के कोन हवा कथा दीटा हवा कथा सबरे पाखा पाखी रहिबे किंतु सब ब्लास्टोमेयर ओडा रहिबे मु कहि छी 8टा सेल पर्यंत ब्लास्टोमेयर पर्यंत तांकर दैट इज समस्त कर इक्वल कैपेसिटी तेनु जदि फर्स्ट डिवीजन परे से माने सेपरेट हो गले किंतु किछि पोर्शन लागि कि रहिला तेनु ये गुटे छुआ हबो ये गोटे चाइल्ड डेवलप करिवो किंतु ताकर किछि पोर्शन लागि कि रहिवो सो दे आर कॉल्ड एज द साइमेस ट्विन्स सो फ्रॉम दिस ट्विन्स ए प्रकार हुए बा जांला ए प्रकार हुए ड्यू टू द दैट इज द irregularity in the fertilization twins are produced and twins are of that is 4 to 5 different types one is called as the non identical another is called as the identical another is called as the polar body twins another is called as the superficial that is the superficial fecundative twins another is called as the Siamese twins clear so with this that is this chapter is finished into the next
class I will start the cleavage. I will start the cleavage.